مصر کے بازار میں بہت زیادہ چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ اسی چہل پہل کے دوران سب کی نظریں بازار کے عین وسط میں جلی حروف میں موجود تحریر پر پڑی، جس پر دواخانہ لکھا ہوا تھا۔ یہ بڑے تعجب کی بات تھی کہ بازار کے عین وسط میں دواخانہ کھولا گیا ہے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہیں بڑا عجیب معلوم ہوا، کیونکہ اس بازار میں تو پہلے ایک کسائی کی دکان تھی اور وہاں ایک کسائی اپنا کاروبار کیا کرتا تھا، لیکن اب بازار کے عین وسط میں دواخانے کے حروف دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ گئے تھے۔ اسی دوران وہاں ایک سردار کے سپاہی کا گزر ہوا۔ اس نے جب یہ دواخانہ دیکھا تو پہلے تو جی بھر کر حیران ہوا، لیکن پھر فوراً سے اپنے سردار کی طرف جانے لگا، کیونکہ اس کے سردار کو اس وقت کسی نئے حکیم کی بے حد ضرورت تھی۔ سردار پچھلے کچھ دنوں سے سخت بیمار تھا۔ اس کی بیماری کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس وجہ سے اس نے جب یہ دیکھا تو فوراً سے اپنے سردار کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنی منزل کی جانب جانے لگا، اور جیسے ہی سردار کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا سردار، جو قبیلے کا ایک معزز شخص جانا جاتا تھا اور اسی بنا پر اسے قبیلے کا سردار بنایا گیا تھا، تکلیف کی شدت سے تڑپ رہا ہے اور بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ اے میرے مالک، میرے علاج کے لیے کسی ایسے شخص کو بھیج دے جو میرا علاج کر سکے اور مجھے اس تکلیف سے نجات دے سکے۔ میں تیرا بہت شکر گزار رہوں گا اور تیری خدمت میں قربانیاں پیش کروں گا، بس تو مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے۔ اس کے بعد میں پوری زندگی تیری عبادت میں گزار دوں گا۔ جب سردار کے سپاہی نے یہ دیکھا تو اس کا دل غم سے بھر گیا، کیونکہ ان کا سردار اپنے قبیلے کا بہت اچھا سردار ثابت ہوا تھا۔ قبیلے کے تمام لوگوں کا خیال رکھنا اس نے اپنا فرض سمجھ لیا۔ اسی وجہ سے اسے سردار کی تکلیف دکھ دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس نے فوراً سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ کہنے لگا، سردار، میں جانتا ہوں کہ آپ کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور آپ نے اپنی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن حد تک کوشش کی ہے، یہاں تک کہ آپ نے مصر کے مشہور حکیم سے بھی دوا لی، لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج جب میں بازار سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ بازار میں دواخانہ لکھا دیکھا۔ پہلے تو میں خوب حیران ہوا کہ عین بازار میں جہاں ہر کوئی کاروبار کرتا ہے وہاں دواخانے کا ہونا کم از کم مصر کی تاریخ میں جو ایک عجوبہ ہی ہے۔ لیکن جب میں اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک نئے حکیم براجمان ہے۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں فوراً سے آپ کے پاس آ گیا کہ آپ کی تکلیف کا مجھے تو پہلے سے ہی علم ہے، میں آپ کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہم قبیلے کے عام عوام کے لیے خادم ہیں، چنانچہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ میری بات مانیں تو اس نئے حکیم کو بھی آزما لیں۔ مصر کے ہر حکیم کو آپ نے آزما لیا ہے، لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حکیم سے بھی اپنی تکلیف کی دوا لیں، نہ جانے کیوں، لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ اس حکیم سے دوا لینے کے بعد آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ سردار نے جب یہ سنا تو خوش ہو گیا، کہنے لگا، مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ تم نے میرے بارے میں اتنا سوچا، اور جیسے ہی تمہیں پتہ چلا کہ نیا حکیم مصر کی سلطنت میں تشریف لایا ہے تو تم نے فوراً سے مجھے یاد کیا۔ مجھے بہت سکون محسوس ہوا، میری آدھی تکلیف تم نے اپنے الفاظوں سے کم کر دی ہے۔ اب تم مجھے جلدی سے اپنے گھوڑے پر سوار کر کے وہاں اس حکیم کے پاس لے جاؤ۔ نہ جانے کیوں، جب سے تم نے مجھے بتایا ہے میرا دل یہی کہہ رہا ہے کہ شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ سردار بہت زیادہ پر امید ہو گیا، کیونکہ پرانے حکیم نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ لا علاج ہے۔ اب جب اسے پتہ چلا کہ نیا حکیم مصر کی سلطنت میں تشریف لایا ہے تو اس کے اندر مایوسی ایک دم سے غائب ہوگی، اور ایک بار پھر سے وہ پر امید ہو گیا کہ شاید اس کی بیماری کا کوئی علاج نکل آئے، وہ صحت یاب ہو جائے۔ اس کی بیماری اس قدر عجیب و غریب تھی کہ اس کے جسم پہ جگہ جگہ چھالے بننے لگے تھے، اس کے پورے جسم میں جلن اور خارش محسوس ہونے لگی۔ نہ وہ بیٹھ سکتا تھا، نہ وہ لیٹ سکتا تھا، غرض ہر قسم کی صورتحال میں اسے تکلیف ہی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ چین سے سو نہیں پاتا تھا۔ یہ ساری تکالیف دیکھتے ہی سپاہی کو اس پر رحم آیا۔ اس نے فوراً سے اپنے سردار کو نئے حکیم کا بتایا۔ سردار کی رضامندی کے بعد وہ اپنا گھوڑا لے کر آیا، اپنے سردار کو اپنے گھوڑے پر سوار کروایا اور حکیم کے پاس لے آیا۔ حکیم کے پاس آتے ہی جیسے ہی سردار نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو پہلے تو وہ حکیم آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن میں کچھ حساب لگانے لگا۔ اس کے بعد اس نے سردار سے ایک ایسا سوال کیا جسے سن کر سردار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نئے حکیم نے سردار سے کہا کہ کیا
آپ نے शिकार के दौरान उसे जंगल में ही मौजूद किसी दरख्त की लकड़ी में पकाकर खाया है। ये सुनकर सरदार हैरान रह गया। कहने लगा, आपको कैसे मालूम हुआ कि 1 महीने पहले ही मैं शिकार पर गया और उसके बाद ही मेरी तबीयत खराब होना शुरू होगी। अब ये हालत है कि ना उठ सकता हूँ, ना बैठ सकता हूँ, ना लेट सकता हूँ। इस वक्त भी मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त किए हूँ। आपका ये सवाल सुनकर मुझे एकदम से जैसे सदमा सा हुआ है और मुझे आपकी सलाहियतों पर यकीन आ गया है। आप बेशक इस मिस्र की सल्तनत में नए हकीम हैं, लेकिन आपके सवाल में ही मेरी बीमारी का इलाज पोशीदा है। आपने मुझसे जो सवाल किया है उसका जवाब हाँ में है। मैंने 1 महीने पहले ही अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार खेला और दरख्त की लकड़ी को भी वहीं से जमा करके उसी पर वो शिकार पकाया। उसके बाद से ही मेरी तबीयत खराब हो गई है। उस हकीम ने मुस्कुराकर सरदार की तरफ देखा और कहने लगा, आपने जिस दरख्त की लकड़ी पर शिकार को पकाया उसमें से एक ऐसा मवाद निकला जो शिकार के गोश्त के साथ मिलकर खास आपके ही जिस्म में यह बीमारी पैदा कर गया है, क्योंकि आपका खून उस मादे को बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी सारी गरमाइश वो आपकी चमड़ी पर जाहिर हो रही है। उसके लिए सीधा और साफ हल ये है कि आप उसी दरख्त के पत्तों से नहाएंगे तो सारा जहरीला मादा आपके जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता करके निकल जाएगा और आप 3 हफ्तों के दरमियान सेहतयाब हो जाएंगे। सरदार पहले तो खूब हैरान हुआ और कहने लगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि जिस दरख्त की लकड़ी मैंने इस्तेमाल की है और जिसके पत्ते मुझे अभी इस्तेमाल करने बाकी हैं वो कौन सा दरख्त है? मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। हकीम ने मुस्कुराकर सरदार की तरफ देखा और कहने लगा, उस दरख्त का नाम बलम है। उसके पत्ते ढूंढ कर आप उबाल कर पिए भी और अपने जिस्म पर बहाएं भी, तब कहीं जाकर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सरदार ने ये सुना तो हकीम से कहा, अब आपकी इस मशवरे की क्या कीमत है? हकीम ने मुस्कुराकर कहा कि जो कीमत आप देना चाहें वही मैं वसूल कर लूंगा। सरदार ने खुश होकर हकीम को 1000 दिनार दिए। जो हकीम हैरान हो गया। सरदार का शुक्रिया अदा किया। सरदार ने फौरन से कबीले में वापस आकर ऐलान कर दिया कि जो कोई बलम दरख्त के पत्ते तोड़कर सरदार की खिदमत में पेश करेगा उसे सरदार बेशबहा इनाम से नवाजेंगे। जब ये सुना गया तो बहुत से लोग दरख्त के पत्तों की तलाश में निकल पड़े। हकीम ने इलाज तो बता दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये पत्ते जंगल के इंतहाई घने हिस्से की तरफ होते हैं। काफी लोगों को नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर सरदार ने अपने ही सिपाहियों को उस दरख्त के पत्तों के लिए भेजा तो उन्हें जंगल के वस्त में वो दरख्त नजर आ गया और उन्होंने उसके पत्ते तोड़कर सरदार की खिदमत में पेश किए। सरदार ने हकीम के बताए गए तरीके के मुताबिक अमल किया और 3 हफ्ते तक मुसलसल ये अमल करते रहे, यहाँ तक कि उन्हें पहले ही हफ्ते में फर्क नजर आने लगा। हकीम के बताए गए नुस्खे पर अमल करते हुए सरदार आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगे। उन्होंने पूरी सल्तनत में यह खबर फैला दी कि सरदार सेहतयाब हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने कामों की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार हैं। लोगों ने जब ये सुना तो हैरान रह गए और बहुत से लोगों ने सरदार से राब्ता किया, हकीम का पता पूछा। सरदार ने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हकीम का पता बता दिया। पुराने हकीम को जब ये सब कुछ पता चला तो वो अपना सा मुंह लेकर रह गया, शायद हसद करने लगा। उससे भी ये तजस्सुस पैदा हुआ कि वो उस नए हकीम को देखे जिसने उसका कारोबार तकरीबन बंद करके रख दिया और बिल्कुल ठप होकर रह गया। सरदार के सेहतयाब होने की खुशी में बहुत बड़ा जश्न मनाया गया और सरदार ने उस नए हकीम को भी अपने उस जश्न में मदऊ किया। वहाँ लोगों ने बाकायदा तौर पर उस हकीम का चेहरा देखा। कोई भी उस हकीम को ना पहचान सका क्योंकि वो इस सल्तनत में नया नया था। लेकिन लोगों ने जब सरदार का किस्सा सुना था कि हर हकीम ने उन्हें जवाब दे दिया और उस हकीम के इलाज से वो सेहतयाब हुए, तो जोक दर जोक लोग नए हकीम के गिर्द जमा होने लगे और अपने अपने मसले बयान करने लगे। वो हैरान रह गया कि उसकी शोहरत इतनी ज्यादा कैसे फैल गई। तब उसे याद आ गया कि सरदार ने उससे कहा था कि उसे पुराने हकीम ने लाइलाज करार दे दिया है और उसे इनाम से भी नवाजा था। ये उसी कड़ी की वजह से होने लगा। वो खूब खुश हुआ और उसने वहां मौजूद लोगों को ये कह दिया कि अगर आपको इलाज करवाना है तो मिस्र के बाजार के वस्त में मैंने अपना दवाखाना खोल रखा है, आप लोग वहां तशरीफ ले आए। मेरा मुआवजा भी इंतहाई मुनासिब है और इलाज के बाद 100% गारंटी है। इत्तेफाक से पुराना हकीम भी उस जश्न में शामिल था
اس نے بیس بدلا ہوا تھا۔ وہ صرف یہی جاننے کے لیے اس جشن میں آیا کہ وہ نئے حکیم کو دیکھ سکے، اور جیسے ہی اس نے نئے حکیم کو دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ نیا حکیم کوئی اور نہیں بلکہ اسی مصر کے بازار کا ایک مشہور کسائی تھا جس نے اپنے چہرے پر داڑھی سجا لی تھی۔ تو پہچانا نہیں جا رہا تھا، لیکن چونکہ پرانا حکیم اس کسائی کا روز کا گاہک تھا اور روز کے روز وہ اس سے گوشت خریدتا تھا، چنانچہ وہ اسے پہچان گیا۔ لیکن اسے یہ فکر لاحق ہوگی کہ یہ کسائی ہو کر لوگوں کا علاج کر کے کامیابی سمیٹ رہا ہے اور وہ پرانا حکیم ہو کر ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ ہر شخص کا اعتماد اس پر سے ختم ہو رہا تھا اور اس کو روزگار کے مسائل لاحق ہو رہے تھے۔ پرانے حکیم نے جب یہ سب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں انتقام اتر آیا اور اس حکیم سے سخت حسد محسوس ہونے لگا۔ اس نے سوچ لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن سب سے پہلے وہ اس حکیم کے پاس گیا جس کے دواخانے پر کل جشن کے بعد سے بہت زیادہ رش تھا۔ وہ حکیم بھی قطار میں بیٹھ کر اپنی باری آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے ایک بڑی سی شال اوڑھ رکھی تھی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ اندر آتے ہی اس نے حکیم کو اپنی جھوٹی بیماری کے بارے میں بتایا۔ نیا حکیم نے جیسے ہی پرانے حکیم کی نبض پر ہاتھ رکھا تو دیکھ کر کہنے لگا، آپ کی نبض بظاہر تو بالکل ٹھیک محسوس ہو رہی ہے اور میں کسی بیماری کی جڑ کو نہیں پکڑ پا رہا ہوں۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو میں نااہل ہوں یا جو آپ نے بیماری بتائی ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ پرانے حکیم نے یہ سنا تو کہکا لگا کر ہنس پڑا، کہنے لگا، ظاہر سی بات ہے یہ دونوں باتیں ہیں، نہ مجھے کوئی بیماری ہے اور تم واقعی میں نااہل ہو۔ میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں، تم ایک کسائی ہو اور تم نے اپنی دکان چمکانے کے لیے حکمت کا لباس اوڑھ لیا ہے۔ تم میری بے عزتی پوری سلطنت میں کروانا چاہتے ہو اور اپنی دکان چمکا رہے ہو۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں پہچان نہیں پاؤں گا؟ یہ کہتے ہی پرانے حکیم نے خود پر اوڑھی شال اچانک سے پرے پھینک دی اور کہنے لگا، تم نے میرے روزگار پر لات مارا ہے۔ تم تو کسائی تھے، تمہارا تو اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، تو پھر کیا ہوا کہ تم حکمت کے شعبے کی طرف آگے ہو؟ میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارا حکمت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تم لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر ان پر تجربے کر رہے ہو۔ کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو جو میں تمہاری اس نااہلی پر خوش رہوں گا؟ کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو جو میں تمہاری اس نااہلی پر خاموش رہوں گا اور اپنا حق مارتے ہوئے دیکھتا رہوں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تمہیں اس بات کی سزا ملے گی اور میں ابھی کے ابھی سلطان کو جا کر تمہارے بارے میں سب سچ بتا دوں گا۔ تمہارا سچ سب کے سامنے آ جائے گا۔ چند دنوں کی خوش فہمی کے ساتھ تم بہت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر چکے ہو، لیکن اب لوگ جب تمہارے بارے میں حقیقت معلوم کر لیں گے تو تم ایک کسائی ہو اور تم صرف ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو، تو وہ لوگ تم پر تھو کریں گے اور تمہاری پورے جہاں میں بے عزتی ہوگی۔ تب میں شوق سے تمہیں پوچھنے آؤں گا کہ میرے روزگار پر لات مارنے آئے تھے، اب کیا ہو گیا؟ نہ صرف تمہارے دونوں روزگار تم سے چھوٹ کے بلکہ تم نے لوگوں کے سامنے اپنا نقاب اتار پھینکا۔ اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہو، میں تم سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنی دکان بند کر کے چلے جاؤ اور میرا حق مجھے لوٹا دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو بہت پچھتاؤ گے اور میں تمہارے خلاف کارروائی کروں گا۔ پرانے حکیم کی باتیں سن کر نیا حکیم پہلے تو خوب حیران ہوا، حیرت زدہ رہ گیا اور پھر مسکرا کر پرانے حکیم کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، تمہیں یہ کس نے بتایا ہے کہ کسائی کو حکمت نہیں آتی؟ تمہیں نہ جانے کیسے یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں حکمت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ میں حکمت کی الف سے یہ تک سے واقف ہوں اور اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ میرا مقصد ہرگز تمہاری روزگار کو لات مارنا نہیں ہے، بلکہ میں تو خود اپنے کاروبار سے تنگ آ کر ایک دوسرا روزگار کھولے ہوئے ہوں اور اللہ نے اس میں برکت ڈال دی ہے۔ تمہیں رزق کی تقسیم سے حسد کرنے کی بجائے اللہ کے فیصلے کو قبول کر لینا چاہیے۔ میں تمہاری کسی کارروائی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم صرف گرجتے ہو، برستے نہیں ہو، اور تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا تو خود اپنی سبکی کرواؤ گے اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پرانے حکیم نے جب نئے حکیم کا اس قدر بلند حوصلہ دیکھا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ کسائی ہو کر مجھ پر چڑھائی کر رہا ہے اور خود کو واقعی میں حکمت کے شعبے میں بتا رہا ہے، لیکن اب اسے آزمانا پڑے گا اور سلطان کے دربار میں اس کی شکایت کرنا پڑے گی، تبھی اسے عقل آئے گی کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ سلطان کے ہاں کسی جرم کی کوئی معافی نہیں ہے۔
जब मैं सुल्तान को सारी हकीकत बताऊंगा तब वो समझ जाएंगे कि इस शख्स ने वाकई लोगों की जानों से खेलकर बहुत बड़ा जुर्म किया है और इसे फांसी की सजा हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा रोजगार फिर से चमक उठेगा, क्योंकि जब से नया हकीम आया पुराने हकीम का दवाखाना बंद होकर रह गया। दवाइयाँ सड़ने लगी, जड़ी बूटियों से तैयार करदा सारे मरकबात खराब हो चुके थे। पुराने हकीम को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उसके दवाखाने में कोई एक मरीज भी अब दिखाई नहीं देता, सिर्फ इस वजह से कि उसने सरदार के अलावा दो तीन सिपाहियों को जो इलाज तजवीज़ किया वो कामयाब ना हो सका, और इस नए हकीम से वो इलाज कामयाब हो गया। इस वजह से उसकी धूम चारों तरफ मच गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसकी धूम मचने से पहले भी जो कोई उससे दवा खरीदने कर जाता तो वो सेहतयाब ना होता, और जैसे नए हकीम के पास दवा खरीदने जाता तो सेहतयाब हो जाता। इस बात का पता उसने इस बात से लगाया कि जो मरीज उसके पास पहले मुसलसल इलाज करवाने आता, पिछले कुछ दिनों से जब वो इलाज करवाने आया तो उसके बाद दोबारा मुड़कर वापस ना आया। हकीम समझ गया कि अब उसका रोजगार जल्द बंद होने वाला है, और वाकई में ऐसा ही हुआ। उसका दवाखाना हर वक्त खाली रहता है, और वो मरीजों का इंतजार करते करते यूं ही दवाखाना बंद करके अपने घर वापस आ जाता। जल्द उसे पता चल गया कि उसके सारे मरीज उससे क्यों रूठ के हैं और उससे इलाज करवाने क्यों नहीं आते, क्योंकि उन्होंने नए हकीम का पता ढूंढ लिया था, और सरदार के इलाज के बाद तो बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। यहाँ तक कि पुराने हकीम ने उस नए हकीम को पहचान लिया, क्योंकि नया हकीम हकीम नहीं बल्कि कसाई था, जिसने अपनी बेरोजगारी से तंग आकर हिकमत के शोबे में तिब आजमाई और हैरत अंगेज तौर पर कामयाबी हो गया। पुराने हकीम को यही बात हजम ना हुई, और उसने फौरन से सोच लिया कि वो सुल्तान से नए हकीम की शिकायत करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो उसका कारोबार बिल्कुल बंद होकर रह जाता, और उसे वैसे भी हिकमत के अलावा कोई और चीज़ नहीं आती थी। इसलिए उसे जब अपने पेट के लाले पड़ गए तो उसने फौरन से नए हकीम से मुलाकात की और उसे खबरदार करने की कोशिश की, अपने अमल से बाज रहने को कहा कि वो कसाई है, कसाई ही बनकर रहे। हकीम बनने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है, वरना वो उसके साथ इंतहाई बुरे तरीके से पेश आएगा। नए हकीम पर पुराने हकीम की किसी बात का कोई असर ना हुआ। तब पुराने हकीम ने फैसला कर लिया कि वो सुल्तान के दरबार में हाजिर होकर इंसाफ का मुतालबा करेगा। अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो फौरन से सुल्तान के दरबार की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि उसे अपने मुलाजिम से पता चला था कि सुल्तान ने आज दरबार में फरियादियों के लिए दिन मुकर्रर कर रखा है। जब वो उनकी सारी फरियाद सुनते हैं, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। हकीम ने इस मौके को गनीमत जाना और फौरन से दौड़ता हुआ सुल्तान के दरबार में हाजिर हुआ। वहां सुल्तान उस वक्त अपने फरियादियों के इंतजार में बैठे हुए थे। पुराना हकीम सबसे पहले वहां पहुंच गया और सुल्तान के पास हाजिर होकर कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, आज मैं आपके पास एक ऐसा मसला लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप आग बगोला हो जाएंगे। बल्कि ये मसला नहीं है, एक शिकायत है जो मैं एक शख्स के हवाले से आपके पास लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इंसाफ करेंगे और इंसाफ के तगाजे को पूरा करते हुए मुझे इंसाफ दिलाएंगे। सुल्तान ने हकीम को बैठने का इशारा किया और पूछ लगे, भला तुम किसकी शिकायत लेकर आए हो? और इसकी शिकायत लेकर आए हो, मुझे तो उसका मौक़िफ़ भी सुनना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर सजा नहीं देता हूँ। पुराना हकीम सोच में पड़ गया और कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, बात ही ऐसी है कि इसमें दो तरफा बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे पास गवाह भी मौजूद हैं और मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। सुल्तान मुअज्जम ने इशारा किया तो पुराने हकीम ने सुल्तान मुअज्जम से कहा, सुल्तान मुअज्जम, पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ये हो रहा था कि जो मरीज मेरे पास इलाज करवाने के लिए आता तो उसे शिफा नहीं मिल रही थी। मैं हैरान रह जाता कि मेरे हाथ से शिफा कहाँ गायब हो गई है। खैर, मैंने इसे अल्लाह का मामला समझकर ध्यान ना दिया और अपने मतब में इलाज जारी रखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे मतब से मेरे मरीज गायब होने लगे। मैंने जब इस बात की खोज लगाई तो पता चला कि मेरे मतब से मरीज एक नए हकीम के पास जाते हैं और जो कोई उससे दवा लेता है तो हैरत अंगेज तौर पर सेहतयाब भी हो जाता है। मेरे पास मरीज ना होने के बराबर रह गए तो मुझे तजस्सुस हुआ कि मैं जानूं कि मरीज जाते कहाँ हैं, और मैं नए हकीम के पते पर पहुंच गया। सुल्तान मुअज्जम, मैंने जैसे ही उस नए हकीम के चेहरे पर देखा तो हैरत से उछल पड़ा कि वो नया हकीम कोई और नहीं बल्कि मेरा एक जानने वाला ही निकला। बल्कि मेरा क्या, मिस्र के वस्त बाजार में एक मशहूर कसाई निकला
जिसे सब कसाई के तौर पर जानते हैं, जो काफी अरसे तक कसाई का काम करता रहा। यहाँ तक कि मैं भी अक्सर उससे गोश्त खरीदता रहा और जब कभी जानवर ज़िबा करवाने होते तो उसकी खिदमत ही तलब करता। मैंने उसे वहाँ देखा तो हैरत ज़्यादा रह गया और उससे पूछ बैठा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो तो हिकमत के शोबे से बिल्कुल भी वाबस्ता नहीं है, ना हिकमत की अलिफ उसे आती है। ये देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि नए हकीम सिर्फ अपने रोजगार की बदौलत हिकमत के शोबे से वाबस्ता हो गया है और लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। भला आप ही इंसाफ कीजिए कि उस कसाई को हकीम होने का हक किसने दिया। हकीम होने के लिए तो हिकमत की पढ़ाई करनी पड़ती है और उस कसाई को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसने हिकमत की पढ़ाई की होगी। मैं आपसे इंसाफ का उम्मीदवार हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इंसाफ करें कि मेरे मरीज बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए हैं और वो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहा है। अब तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जानी नुकसान ना होने की वजह से उसकी पकड़ न की जाएगी। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप फ़ौरन से उसके खिलाफ कार्रवाई अमल लाएं और उसे गिरफ्तार करें, सख्त से सख्त सज़ा दें ताकि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत करने से बाज रहे कि जो हकीम नहीं है वो भी हकीम बनकर बैठ जाए और लोगों को मौत के मुंह तक पहुंचा दे। इत्तेफाक से अगर उसके कुछ मरीज सेहत याब हो गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हिकमत के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये तो नीम हकीम खतरा जान वाली बात हो गई है। वो नीम हकीम ही है और लोगों के लिए खतरा जान वाली बात ही है। चुनांचे मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी शिकायत पर गौर किया जाए और उस नए हकीम को फौरन से गिरफ्तार किया जाए जिसने लोगों को गुमराह कर रखा है। ये कहकर हकीम खामोश हुआ तो सुल्तान सोच में पड़ गए। कहने लगे, क्या वाकई में वो शख्स कसाई है। हकीम ने जब ये बात सुनी तो फौरन से सुल्तान के सामने 3-4 गवाह पेश कर दिए जो उसी बाजार से ताल्लुक रखते थे और ताजिर थे। उन्होंने बाकायदा तौर पर पुराने हकीम की बात की तस्दीक की और कहने लगे, सुल्तान मुअज्जम वाकई में ऐसा ही है, वह शख्स कसाई है। अलबत्ता उसने अपना हुलिया बदल लिया ताकि उसे कोई पहचान न सके और उसके पुराने रोजगार के उसे ताने ना दे सके। लेकिन हमने जब भरपूर तौर पर मुशाहिदा किया और पुराने हकीम की बात सुनकर जब गौर व फिक्र किया तो हमें वाकई में अंदाजा हो गया कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि कसाई ही है जिसने बेरोजगारी से तंग आकर हिकमत के शोबे में तिब आजमाई करने का सोचा है। अब आप खुद अंदाजा लगा ले कि ये लोगों के लिए किस कदर खतरनाक बात है। हम आपसे कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। जब वो लोग अपनी शिकायत सुनाकर खामोश हो गए तो सुल्तान ने उन्हें जाने का हुक्म दिया और कहने लगे, मैं किसी भी बात का फैसला बगैर तहकीक के नहीं करता हूँ। आप लोगों ने अपनी तरफ की बात मुझे सुना ली है, अब मैं खुद तहकीक करके दूसरी तरफ की बात मालूम कर लूँगा। उसके बाद ही मैं कोई फैसला करूँगा और उम्मीद रखें कि फैसला अच्छा ही होगा। आपका सुल्तान आपका खादिम है, कभी भी आप लोगों का सर झुकने नहीं देगा। जहाँ तक नए हकीम की बात है तो ये बात तो वाकई में तशवीशनाक है। वो हकीम लोगों की जान से खेल रहा है और मैं अपनी सल्तनत के किसी शख्स को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता कि वो लोगों की जानों से खेलना शुरू कर दे। चुनांचे आप लोग उम्मीद रखिए कि मैं बेहतरीन फैसला करूंगा और ये फैसला तमाम लोगों के सामने होगा। पुराने हकीम ने ये सुना तो गहरा सांस भरा। उसके अंदर उम्मीद की किरण जाग उठी कि वाकई में अब सब कुछ बेहतर हो जाएगा। सुल्तान के दरबार से निकलकर पुराना हकीम नए हकीम के पास आया और उसे देख कर कहने लगा, ए कसाई, अब तेरी हिकमत के दिन खत्म होने वाले हैं। तेरी शोहरत जल्द खाक में मिलने वाली है क्योंकि मेरे समझाने पर भी तू ना समझ सका और मैंने तुम्हारी शिकायत सुल्तान के दरबार में लगा दी है। अब तुम अपना बोरिया बिस्तरा संभाल लो और इससे पहले ही इस सल्तनत से निकल जाओ, वरना तुम्हें सख्त तरीन सजा का सामना करना पड़ेगा। और तुम्हें तो ये मालूम है कि हमारे सुल्तान मामूली सी मामूली बात पर भी कड़ी से कड़ी सजा देते हैं ताकि आइंदा कोई इस किस्म की हरकत करने की जुर्रत ना कर सके। तुम्हारा तो जुर्म बहुत बड़ा है, तुमने तो इंसानी जानों से खेलने की कोशिश की है। बस सुल्तान को इस बात की शिकायत मैंने लगा दी है क्योंकि तुमने मेरा हक खाने की कोशिश की है। मैं इसके लिए तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा। पिछले 1 महीने से मेरे पास मरीज ना होने के बराबर है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। वैसे भी तुम कसाई हो, कसाई ही रहो और अपनी सलामती चाहते हो तो फौरन से यहाँ से निकल जाओ। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है भागने का, इसके बाद तुम पछताओगे। नए हकीम ने जब ये सुना तो फौरन मुस्कुरा कर रह गया। कहने लगा, मैं आने वाले हर किस्म के वक्त के लिए खुद को तैयार कर चुका हूँ।
अच्छा है, तुम्हारी भी गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए। अब तुमने अपना काम कर लिया है, मुझे अपना काम करने दो और मुझसे हमदर्दी मत जताओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जाएगी। ये कहते ही पुराने हकीम को उसने जाने का इशारा किया और नया हकीम अपने मरीज देखने के लिए उनको अंदर बुलाने लगा। पुराने हकीम को एक बार फिर से अपनी शदीद सबकी महसूस होगी और वो अपने मतलब की तरफ बढ़ गया। सुल्तान ने पुराने हकीम के जाते ही अपने एक सिपाही को उनके पीछे भेजा और सारी सूरत हाल मालूम करने के लिए कहने लगे। हकीम की शिकायत सुनने के बाद सिपाही ने सुल्तान को सारी तफसीलात गोशा गुजार कर कहने लगा, नया हकीम वाकई में एक कसाई ही है और इस बात की तस्दीक मैंने आसपास की तमाम दुकानों से कर ली है। नए हकीम को ऐसा लगता है कि उसे किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन उसे तकरीबन तमाम लोगों ने पहचान लिया है। इसके बावजूद भी वो तमाम लोग उससे इलाज करवाने जाते हैं। इस बात की मुझे समझ नहीं आई है। आप सुल्तान हैं, बेहतर तरीके से फैसला कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको भरपूर तरीके से तहकीकात करनी चाहिए ताकि किसी को कोई गलत सजा ना मिल जाए। सिपाही ये कहकर खामोश हो गया और कुछ याद आए पर सुल्तान से कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, नए हकीम की धूम हर तरफ मची हुई है और उसके इलाज की बदौलत बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। मैंने बहुत से लोगों से सुना है, सुनने में तो ये भी आया है कि चन्नार कबीले के सबसे बड़े सरदार जिन्हें हर किस्म के हकीमों ने इलाज के बाद गैर इलाज शुदा करार दे दिया है और उनकी बीमारी को ला इलाज करार दिया, उन्होंने भी उस नए हकीम से अपना इलाज करवाया है। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी सेहतयाबी का एक जश्न भी रखा था। आपको भी मदऊ किया था, लेकिन आप पहले ही सफर पर रवाना हो चुके थे, इसलिए आपको बता ना सका। सुल्तान ने जब ये सुना तो फौरन से सरदार से मिलने के लिए रवाना हो गए। सरदार ने सुल्तान को अपने गरीब खाने पर आते देखा तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और कहने लगा, आपने हमारे गरीब खाने को रौनक बख्शी है, आपके लायक हम क्या खिदमत करें। सुल्तान ने मुस्कुराकर सरदार को गले से लगाया और कहने लगे, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बीमारी को शिकस्त दे दी और आप बिल्कुल सेहतयाब होकर हमारे सामने बैठे हैं। सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपने किससे इलाज करवाया। सरदार ने जब ये सुना तो मुस्कुरा दिए, कहने लगे, मैंने अपने इलाज के जश्न में उस नए हकीम को मदऊ किया था, लेकिन शायद आप सल्तनत से बाहर दौरे के लिए रवाना हो चुके थे, इसलिए आप उनसे नहीं मिल सके। ये नया हकीम मिस्र की बस्ती बाजार के वस्त में ही मौजूद है और वहाँ बहुत रश लगा रहता है। उनका नाम सुनकर मैंने उनसे इलाज करवाया तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गया हूँ। मैंने सुना है कि जो शख्स भी उनके पास आता है उनकी बीमारी का इलाज वो इंतहाई दिलो जान से करते हैं और मरीज सेहतयाब हो जाता है। सुल्तान ने जब ये सुना तो हैरान रह गए। पुराने हकीम ने ना जाने क्या कुछ कहा था कि वो नया हकीम कसाई है और भी बहुत कुछ लोगों की जानों से खेल रहा है, लेकिन यहाँ तो सुल्तान ने जितनी भी तहकीकात करवाई सबका नतीजा यही निकलने लगा कि नया हकीम के हाथ में अल्लाह ने बेपनाह शिफा अता की है और जो कोई उनसे इलाज करवाता है वो बगैर किसी बीमारी के इस काबिल हो जाता है कि अपनी पुरानी जिंदगी जी सके। सुल्तान ने सोच लिया कि अब उन्हें क्या करना है। उन्होंने अपना भेष बदला और उस नए हकीम से मिलने का इरादा किया। नए हकीम के दवाखाने पर पहुंचते उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि क्या वो इस नए हकीम को पहले से जानते हैं। वहां मौजूद कुछ लोगों ने सुल्तान से कहा, जी हाँ, हम उन्हें पहले से ही जानते हैं। ये हकीम पहले एक कसाई का काम करते थे। कसाई का काम इनका खानदानी काम है, लेकिन इनके हाथ में अल्लाह ने शिफा रखी है और जिसको जो भी दवा देते हैं वो जरूर अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब हो जाता है। सुल्तान ने जब ये दोनों बातें सुनी तो कश्मकश में मुब्तला हो गए कि आया कौन सी बात सच साबित होने वाली है। सुल्तान ने अपनी बारी आने पर अंदर कदम रखा और जैसे उस नए हकीम पर नजर पड़ी तो चंद लम्हे के लिए ठहर से गए। वो वाकई में कोई हकीम ही दिखाई दे रहा था, कहीं से नहीं लग रहा था कि वो कसाई है। सुल्तान ने आगे बढ़कर नए हकीम से मुसाफा किया और कहने लगे, मैं आपके इलाज की धूम सुनकर आपके पास इलाज की गर्ज से आया हूँ। दरअसल पिछले कुछ महीनों से मुझे रात को सोते वक्त शदीद खांसी होती है, किसी चीज से भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ऐसा लगता है मेरे पूरे जिस्म में जलन सी बढ़ गई है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस खांसी का इलाज करें। सुल्तान ने इन तमाम चीजों का बहाना नहीं बनाया बल्कि सच ही बताया।
सुल्तान भी पुराने हकीम से दवाई लेकर देख चुके थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने इस मसले को बयान करके पता लगाया जाए कि आया नया हकीम कसाई है या वाकई में वो हिकमत के शोबे से कुछ ताल्लुक रखता है। हकीम ने जब ये सुना तो फौरन से सुल्तान की नब्ज पर हाथ रखा। कहने लगा, आपको ये खांसी पिछले 1 महीने से तंग कर रही है क्योंकि आपने अपने खाने में बद परहेजी की है। आपको आपके पहले मुआलिज ने भी कुछ एहतियाती तदाबीर बताई होंगी। आप चूंकि सफ़र में रहते हैं इसलिए आपको ये खांसी ज़्यादातर तंग करती है, क्योंकि सफ़र में उड़ने वाली धूल मट्टी से आपके जिस्म में ये तब्दीलियां पैदा होती हैं और आप अपने आप को शदीद बीमार महसूस करने लगती हैं। हाल में ऐसा ही लग रहा है जैसे आपने अभी सफ़र किया है और ये खांसी आपको काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसलिए आपको वही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी जो पहले के मुआलिज आपको बता चुके हैं। अगर उनके इलाज से आपको फ़र्क था तो आपको वही एहतियाती तदाबीर को जारी रखना पड़ेगा। अगर आप मेरे इलाज से अपनी इस खांसी को दूर करना चाहते हैं, 2 महीने तक आपको हर किस्म की चिकनी चीज़ों से परहेज़ करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर आपकी खांसी हल्की होगी और आपको इससे निजात मिलेगी। साथ ही साथ आपको सफ़र से भी दूर रहना पड़ेगा। ज़्यादातर खुली फ़िज़ा में रहना जिसमें आलूदगी शामिल हो आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसी जगह पर अपना वक़्त गुजारें जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त हों, पौधे हों और ख़ूबसूरत मनाज़िर हों, फूल हों। यानी आपको अपनी आबो हवा बदलनी होगी, तब कहीं जाकर आपकी खांसी आपकी जान छोड़ेगी, क्योंकि यह आम खांसी नहीं है, माहौलियाती आलूदगी की बिना पर होने वाली खांसी है। सुल्तान ने जब ये सुना तो हैरत ज़दा रह गए। वो चूंकि भेस बदल कर अपने इलाज के लिए आए थे और उस नए हकीम ने उन्हें अलिफ से लेकर ये तक उनके मर्ज के बारे में सब कुछ बता दिया जो आज से पहले उन्हें किसी हकीम ने ना बताया, तो वो इस बात को मान के कि कसाई वाकई में हिकमत के शोबे में मालूमात रखता है। सुल्तान ने उस कसाई से कह दिया कि मैं सुल्तान हूँ और पुराने हकीम ने तुम्हारी शिकायत मेरे दरबार में लगाई थी कि तुम लोगों की जिंदगियों से खेलते हो। इस वजह से मैं तुम्हारे पास तुम्हारा इम्तिहान लेने आया, लेकिन तुम तो अपने इम्तिहान में ना सिर्फ कामयाब हुए बल्कि मेरा भी दिल जीत लिया है। अब तुम खुद ही सच बता दो कि असल हकीकत क्या है। हकीम ने मुस्कुराकर सुल्तान की तरफ देखा। कहने लगा, मैं वाकई में एक कसाई था और जानवरों को ज़बह करके अपना कारोबार किया करता, लेकिन जब बाजार में बहुत से तजर्बाकार कसाई आ गए तो मैं समझ गया कि अब मेरा ये रोजगार ख़त्म होने के करीब है। अब मुझे अपने असल से जुड़ जाना चाहिए। ख़ानदानी तौर पर मुझे सब कसाई समझते हैं, जबकि कसाई होना मेरा शौक था और हिकमत मेरा ख़ानदानी शोबा है। मैंने अपना शौक पूरा किया और अपने ख़ानदानी शोबे को छोड़ दिया, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा अपना शौक मेरा पेट नहीं भर सकता तो मैंने अपने ख़ानदानी शोबे यानी हिकमत की तरफ तवज्जो दी। और सब कुछ आपके सामने है। मैं लोगों की जिंदगियों से नहीं खेल रहा हूँ, बल्कि मैं वही सब कुछ उन पर तजर्बा कर रहा हूँ जो मैंने अपने आबाओ अजदाद से सीखा है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं हकीम नसरुल्लाह का पोता हूँ और ये बात कोई नहीं जानता। हकीम नसरुल्लाह को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, जिनका पिछले कुछ सालों में इंतकाल हुआ है। अब आपको उम्मीद है सब कुछ वाज़ेह तौर पर पता चल गया होगा। सुल्तान ने मुस्कुराकर नए हकीम को हिकमत के शोबे में लोगों की खिदमत करने के एजाज में शाही हकीम मुकर्रर कर दिया और पुराने हकीम को बुलाकर उन्हें सिर्फ इतनी नसीहत की कि बगैर तहकीक के बात को आगे बढ़ाने वाला इंसान कभी ना कभी अपनी उस हरकत पर नादिम होता है। पुराने हकीम ने जब ये सब कुछ सुना तो हैरान रह गया। उसे ये पता चला कि कसाई दरअसल खानदानी कसाई नहीं था बल्कि खानदानी हकीम था और उसने अपनी हिकमत के शोबे से खुद को जोड़कर इस शोबे में झंडे गाड़े तो वो शर्मिंदा हो गया। उसने सुल्तान से मुआफ़ी मांगी और कहने लगा, जब मुझे पता चला कि मेरे सारे मरीज इसके पास इलाज करवाने जाते हैं तो मेरे अंदर हसद के जज्बे ने जन्म लिया और मैंने हसद के हाथों मजबूर होकर ये सब कुछ किया, क्योंकि अब मेरे पास कोई मरीज ना आता और मैं बेइंतहा कसम पुश्ती में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। इसी वजह से मैंने आपसे इसकी शिकायत कर दी। आप मुझे माफ़ कर दें। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ और मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैंने हक़ाइक़ से अपनी आंखें मोड़ ली और तहकीक ना की। सिर्फ यही समझता रहा कि ये कसाई है तो लोगों की ज़िंदगियों से खेलता रहता है।
हकीकत मुझे मालूम नहीं थी, इसलिए मैं आपसे मुआफ़ी माँगता हूँ। सुल्तान ने जब पुराने हकीम को यूँ अपनी गलती तस्लीम करते हुए देखा तो उन्होंने उन्हें नायब हकीम मुकर्रर कर दिया, जो कि शाही हकीम के मातहत काम करके अपने रोज़गार को पहले की तरह बहाल कर सके। यूँ पुराने और नए हकीम दोनों ने एक दूसरे से मुआफ़ी तलाफ़ी करके अपने दिल में मौजूद हसद की आग को बुझा दिया, और ये सब कुछ सुल्तान की फ़हम व फ़रासत से ही मुमकिन हो सका। उन्होंने पुराने हकीम की बात सुनते ही नए हकीम को सज़ा नहीं दी, बल्कि अपनी तरफ से पूरी तहकीकात की, और तहकीकात में ये बात साबित हुई कि ना नया हकीम अपनी जगह गलत है, ना पुराना हकीम कुछ गलत कह रहा था। दोनों को आपस में खुद से वाकफियत हासिल ना थी, इसलिए उन दोनों ने ये कदम उठाया। सुल्तान ने उनके दरमियान गलत फहमी को दूर कर दिया और अपनी फहम फरासत से पुराने हकीम के दिल में मौजूद हसद की आग को भी ख़त्म कर दिया। यूं वो दोनों एक साथ काम करने लगे और आवाम की खिदमत करने लगे। प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल नॉवेल्स टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह के प्यारे किस्से और कहानियाँ बर वक़्त आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।